भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए उनके हुक्मरानी के मॉडल पर संगीन सवालात उठाए हैं। के.टी.आर. ने तंजिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस लीडर बड़े फखर से उन्दी रामा राज्यम कायम करने की बातें करते हैं, लेकिन जमीन पर उनके अमाल इसके बिल्कुल बरक्स हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या गरीबों के घरों को मिस्मार करना और उन्हें बेघर कर देना ही उन्दी रामा राज्यम की असल तारीफ है। के.टी.आर. ने इल्जाम लगाया कि तरक्की और सफाई के नाम पर आम आदमी की छत छीनी जा रही है, जिससे हजारों खानदान सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अवाम ने कांग्रेस को इक़्तिदार इसलिए नहीं दिया था कि वो उनके आशियाने उजाड़ दे। बीआरएस लीडर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर मकानात के इन्हिदाम का सिलसिला बंद करे और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करे। उनके बकौल कांग्रेस की पॉलिसियां सिर्फ आम लोगों को परेशान करने के लिए बनाई गई है और वो अवामी मुफाद से पूरी तरह हट चुकी है। के.टी.आर. ने यह भी वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी मजलूमों के साथ खड़ी है और हुकूमत की इस हित धर्मी के खिलाफ एहतजाज जारी रखेगी। इस बयान के बाद रियासत की सियासत में एक बार फिर लफ्जी जंग तेज हो गई है और हुकूमत की हाउसिंग पॉलिसी पर बहस चल गई है। మహబూబ్ నగర్ లో పాపం కాళ్ళు చేలు చక్కగా లేనోళ్ళు దివ్యాంగులు వాళ్ళు కట్టుకున్న కాళ్ళని 150 ఇండ్లు ఉంటే వాళ్ళ మీద కూడా పోయి మొదలుపోయి కూలగొట్టారు। మీ దగ్గర 4000 మంది పోలీసులు వచ్చినారు। ఒకటి కాదు, శత్రు దేశం మీదకి దండయాత్రకు పోతారు చూడు, అట్లా వచ్చి తెల్లారి పూట నోటీస్ ఇవ్వకుండా మీ మీద వచ్చి దాడి చేసి మీ నోటికాడు బుక్క లాగేసుకుని ఇవాళ మీ పిల్లలు చదువుకునేటోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు పరీక్షలు రాసే టైం ఇవాళ మిమ్మల్ని రోడ్డు మీద పాడేసింది ప్రభుత్వం। నేను అందుకే అంటున్నా, ఇందిరమ్మ రాజ్యం అన్నారు। ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే ఇల్లు కొట్టడం। మీకు ఇలా ఏ ఓట్లు లేవు, నేను రాజకీయం కోసం రాలా। కేసీఆర్ సార్ చెప్పాడు, మీకు చెప్పమన్నాడు కేసీఆర్ సార్, మళ్ళీ మీకు ఇదే వెలుగు మట్లలో ఇదే జాగలో మీకు ఇల్లు కట్టించి మళ్ళీ గృహ ప్రవేశం కూడా మేమే చేయాలి। మీరు ఐక్యంగా ఉంటే, మీరు ఐక్యంగా కొట్లాడితేనే మీరు విజయం సాధిస్తారు। లేదంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక 100 మందితో సంతకాలు ఎలుముద్రలు తీసుకొని మీకు ఆడేయడం। మరి కేసీఆర్ గారు అప్పుడు 2000 డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించాడు, అందులో కొన్ని మిగిలి ఉన్నాయంటే ఇంకా ఆ మిగిలిన ఇళ్లలో కొంతమందికి ఇస్తామని చెప్పి కొంతమందిని లాక్కెళ్ళిపోతారు। అట్లా మీ ఐక్యతను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తారు। పాపం ఇక్కడ ఓపీడీఆర్ వాళ్ళు గతంలో అప్పుడెప్పుడో చేసిన పని ఇది। మరి పాపం వాళ్ళేం తప్పు చేయలేదు, మీకు పట్టాలు ఇప్పించారు, వాళ్ళు తప్పు చేసింది కూడా లేదు। ఇలా వాళ్ళని పట్టుకుని కూడా నానా మాటలు మాట్లాడుతున్నది ప్రభుత్వం। ల్యాండ్ మాఫియా అంట, ఎవడమ్మా ల్యాండ్ మాఫియా? ఎవడైతే ఇలా 100 ఎకరాలు మీ చుట్టూ కొన్నాడో, ఎవడైతే పేదవాళ్ళు కొన్నాడో వాడు మాఫియానా? కాబట్టి ఇవాళ మీకు జరిగిన కష్టం రాష్ట్రం మొత్తం చూసింది, మీ ఏడుపులు రాష్ట్రం మొత్తం చూసింది। మీ పిల్లలు మీరు పడుతున్న అవస్థను చూసే కేసీఆర్ సార్ మమ్మల్ని పంపించారు। దయచేసి ధైర్యంగా ఉండండి, మీకు అన్ని రకాలుగా అండగా అజయ్ ఉంటాడు, మా గాయత్రి రవిచంద్ర గారు ఎంపీ గారు కూడా ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఉంటారు। మేము కూడా మళ్ళీ దయచేసి నిన్ననే మేము రావాలి నిజానికి ఇక్కడ, కానీ పోలీసులను పెట్టి అధికారులను పెట్టి ఆటంకాలు కల్పించి ఇవాళ మేము ఇక్కడికి వస్తుంటే కూడా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రానికుండా చేసినారు। మిమ్మల్ని అక్కడ బంధిస్తే మీరు గోడలు దించి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడికి। మేము వస్తే ఇక్కడ మీరు రాకూడదు, ఏం భయం ఏంటి? నేను ఒకటే మాట్లాడుతున్నా, ప్రభుత్వం తప్పు చేయకపోతే మరి రమ్మనండి, 3 మంత్రులు ఇక్కడికి, 3 మంత్రులు ఇక్కడ రమ్మనండి, వాళ్ళు వచ్చి చెప్పొచ్చు కదా। కలెక్టర్ రావాలా, మంత్రులు రావాలా, తప్పు జరగకపోతే మీది తప్పు అయితే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పొచ్చు కదా, ఎందుకు ధైర్యం లేదు? తప్పు చేశారు। भारत राष्ट्र समिति के एमएलए पाडी कोशक रेड्डी ने करीमनगर पुलिस पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। एक हालिया बयान में उन्होंने दावा किया कि मकामी पुलिस सीआईडी हुक्काम को गुमराह करने के लिए झूठी रिपोर्ट्स तैयार कर रही है। कोशक रेड्डी का कहना है कि पुलिस ने सीआईडी को दी गई अपनी रिपोर्ट में मुज़क्का-खेज़ दावा किया है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्हें पाकिस्तान से आया हुआ करार दिया है। उन्होंने पुलिस के इस रवैये को इंतहा पसंदी और लाकानूनियत से ताबीर करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मन घड़त कहानियां बनाई जा रही है। एमएलए ने मजीद इल्जाम लगाया कि पुलिस ये झूठ फैला रही है कि वो 50 अफराद के साथ आए थे ताकि केस को मजीद संगीन बनाया जा सके। उनके बकौल पुलिस का ये रवैया न सिर्फ गैर इखलाकी है बल्कि एक मुंतखब नुमाइंदे की साख को नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता कोशिश है। कोशक रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो उन झूठे इल्जामात से डरने वाले नहीं हैं और पुलिस की इस नाइंसाफी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे।
उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो करीम नगर पुलिस की उन जाबिराना कार्रवाइयों का नोटिस लें और मामले की शफाफ तहकीकात कराएं। इस बयान के बाद जिला की सियासत में एक नया तनाज़ो खड़ा हो गया है और पुलिस और सियासतदानों के दरमियान टकराव की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। ఈ కేసు నట సిఐడికి ఇచ్చారు. సిఐడి ఎంక్వైరీ అట. సిఐడి ఎంక్వైరీలో నాకు అక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్సే చెప్పారు. వీళ్ళు విచారణకు వచ్చిన పోలీస్ ఆఫీసర్సే నా మిత్రులు వెల్విషర్స్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళు సిఐడికి ఫైలు ఒక వారం 10 రోజుల క్రితం సిఐడి ఎస్పీ గారిని కలిసి డిఎస్పీ గారిని కలిసి వీళ్ళు ఇచ్చిన ఫైల్లో నేను సిపి గారిని పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చినవాడిని నేను అన్నా అని దాంట్లో రాసి వీళ్ళు సిఐడికి సబ్మిట్ చేసిండ్రు. సిఐడి వాళ్ళు అన్నారు మరి మీరు ఇట్లా రాసిర్రు మరి అన్న దాంట్లో వీడియో అయినా చూపించాలి, చూపించకపోతే చాలా కష్టమవుతుంది, మరి ఇట్లాంటి మనం ప్రూవ్ చేయలేము, ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాము కాంది అనేది సిఐడి ఆఫీసర్స్ అన్నారు. అన్న తర్వాత ఎస్పీ గారు ఆడున్న సిఐడి డిఎస్పీ గారు కూర్చొని వీళ్ళు ఒక 10 days దీన్ని ఎట్లా చేద్దామని స్కెచ్ చేసి ఆడికి పోయి అసలు ఈ సిపి ఏసీపీ సిఏ దొంగలు అంటున్నా నేను. ఆ దొంగల దగ్గరికే పోయి వాళ్ళని పిలిచి అక్కడ గద్దెల దగ్గర దేవుని గద్దెల దగ్గర ఆ సిఐని పిలిచి ఎంక్వైరీ చేసిండు. ఆ సిఐ కూడా ఎంత తప్పుడు సమాచారము ఇక్కడ నుంచి పైన సిఐడి ఆఫీసర్ అయిన సిఐడి డిఎస్పీ గారికి ఇస్తున్నాడంటే ఆ వీడియో కూడా మీకు ప్లే చేస్తాం, మీ గ్రూప్ లో లేస్తాం. మళ్ళా ఆయన ఏమని చెప్తుండు, కౌశిక్ రెడ్డి గారు హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి 50 మందితోని ఆయన వచ్చిండికి. तेलंगाना के जिला वरंगल की अदालत में बम की मौजूदगी की इत्तला ने सिक्योरिटी इदारों और अवाम में जबरदस्त हलचल मचा दी है। पुलिस कंट्रोल रूम को मौसूल होने वाली एक गुमनाम फोन कॉल में दावा किया गया कि कोर्ट कम्प्लेक्स की इमारत में बम नस्ब किया गया है, जिसके बाद फौरी तौर पर पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी बम डिस्पोजल स्क्वाड और डाग स्क्वाड के साथ जाए वकुआ पर पहुंच गई और जजों, वकला और साइलिन को बहिफाजत इमारत से बाहर निकाला गया। सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूरे कोर्ट कम्प्लेक्स को अपने मुहासरे में लेकर वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज किया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को टाला जा सके। अदालत के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है और किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस खौफनाक इत्तला के बाइस अदालती कार्रवाई मुअत्तल हो गई और इहाता अदालत में शदीद खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की खुसूसी टीमें इस फोन कॉल का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये महज एक शरारत थी या कोई संगीन साजिश। हुक्काम ने अवाम से पुरसुकून रहने की अपील की है और यकीन दिलाया है कि सिक्योरिटी के तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तलाशी के अमल के दौरान करीबी इलाकों में भी पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत-ए-हाल काबू में रहे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बार फिर हाइड्रा की कार्रवाई पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे कड़ी फिटकार लगाई है। ये मामला उपल के इलाके मल्लापुर में वाक़े भाभा नगर सोसाइटी का है, जहां हाइड्रा ने 500 गज के 2 निजी प्लाटों पर जबरदस्ती बाड़ लगा दी थी। जमीन के मालिकान ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी ज़ाती मलकियत में मुदाखलत की गई है। अदालत ने समाअत के बाद हाइड्रा की इस हरकत को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी तौर पर बाड़ हटाने का हुक्म सादिर किया है। हाई कोर्ट ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए मुतासरीन को 1 लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करने की हिदायत दी है। मजीद बरहा अदालत ने हुक्म दिया है कि जब तक हाइड्रा इस निजी जमीन से बाड़ नहीं हटाता तब तक इसे हर गुजरते दिन के एवज मुतासिरा फरीक को 1 लाख रुपए यौमिया जुर्माना अदा करना होगा। इस फैसले को हाइड्रा के लिए एक बड़ा झटका करार दिया जा रहा है, क्योंकि अदालत ने वाज़े कर दिया है कि किसी की निजी मलकियत पर बगैर किसी ठोस कानूनी बुनियाद के कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस हुक्मनामे के बाद हुक्काम में खलबली मच गई है और अवामी हलकों में अदालती फैसले का खैर मुकद्दम किया जा रहा है। हैदराबाद में सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म इदारे हाइड्रा ने नेकनामपुर में एक कामयाब मुहिम चलाकर करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीन को कब्जे से छड़ा लिया है। इस खुसूसी कार्रवाई के दौरान हुक्काम ने 2700 मुरब्बा गज सरकारी ज़मीन को लैंड माफिया और गैर कानूनी तजावुज़ात से मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया है। बाज़याफ्त की गई इस ज़मीन की मार्केट वैल्यू तकरीबन 54 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसे अब अवामी मुफाद के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रा की टीमों ने मौके पर पहुंचकर गैर कानूनी तमीरात को हटा दिया और ज़मीन के गिर्द हिफाजती बाड़ लगाकर इसे सरकारी तहवील में ले लिया है।
हुक्काम का कहना है कि ये जमीन एक कीमती असासा है जिसे कुछ बासर अफराद हड़प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई ने इस कब्जे को नाकाम बना दिया। इस मुहिम का मकसद शहर के मुजाफात में कीमती सरकारी जमीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और कब्जा करने वालों को सख्त पैगाम देना है। मकामी इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि अवामी अमलाक पर किसी भी किस्म का नाजायज़ कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी। इस कामयाबी के बाद इलाके में हाइड्रा की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, क्योंकि इससे सरकारी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। अब इस ज़मीन को पार्क और दीगर अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तस करने पर गौर किया जा रहा है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मीचल में एक मंदिर के अहाते में नमाज अदा करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये वाक़या बुध की शाम इस वक्त पेश आया जब ज़ुबैर नामी एक शख्स को मुबैना तौर पर इंजीनियर सवामी मंदिर के शेड के ऊपर नमाज पढ़ते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरकान को ये दावा करते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने इस शख्स को मंदिर के अहाते में ऐसी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शाम के वक्त जब मंदिर में अकीदतमंदों की आमद और रफ्त जारी थी, इस वक्त इस नौजवान की मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया। मुश्तइल अफराद ने फौरी तौर पर इस शख्स को काबू में कर लिया और बाद अज़ां इसे मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मामले की गहराई से तहकीकात शुरू कर दी है ताकि वाक़ये की असल हकीकत और नीयत का पता लगाया जा सके। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो अमन अमान बरकरार रखें और किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आया ये महज एक इनफरादी अमल था या इसके पीछे किसी किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी का इरादा था। इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि मजहबी मकामात के तक़द्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఈరోజు మనం మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న అంటే ప్రతాప్ సింగర గ్రామంలో అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్లో ఈరోజు సాయంత్రం సమయంలో 5-6 గంటల సమయంలో జుబేర్ అనే వ్యక్తి అక్కడ అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చి అంటే విచక్షణ రహితంగా అక్కడ ధ్వంసం చేయడం కానీ అక్కడ ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి పైన ఉన్న షెడ్ మీద కూర్చొని నమాజ్ చేయడం అంటే ఏ రకంగా ఉందో ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలనలో హిందువులకు రక్షణ లేదు, హిందువుల గుళ్లపై కూడా రక్షణ లేదని నిదర్శనం ఇలాంటి సంఘటనలు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో అనేక సంఘటనలు జరుగుతున్నా ఏదో తూతు మంత్రంగా పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఏదో కేసులు పెడుతున్నాం ఏదో చెప్తుంటారు. వీని కూడా అంటే గతంలో ఏదైతే సిటీలో జరిగిన సంఘటనలు పిచ్చివాడని చిత్రీకరించి ప్రయత్నం చేసిండ్రో ఇప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితి రావద్దని చెప్పి మేము తక్షణమే అక్కడున్న ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి పోలీసు వారికి అప్పచెప్పడం జరిగింది. పోలీసు వారిని కూడా ఒకటే కోరుతున్నాం, ఇక్కడ జరుగుతున్న ఇక్కడ రోహింగ్యాలు కానీ ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని అసాంఘిక శక్తులు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది మైనార్టీల పేరు बासरा ट्रिपल आईटी कॉलेज में एक तालिबा की खुदकुशी के वाक़ये में कई चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आए हैं। पुलिस तहकीकात के मुताबिक जिला विनापर्ती से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला वसंत, जो कि इंजीनियरिंग के पहले साल की तालिबा थी, ने अपने करीबी रिश्तेदार गणेश नाइक की खुदकुशी की खबर सुनकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बताया गया है कि गणेश नाइक वसंत से मोहब्बत करता था और उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन वसंत ने अपनी तालीम मुकम्मल होने तक शादी से इनकार कर दिया था। इस इनकार से दिलबर्दाश्ता होकर गणेश ने गुज़िश्ता रोज़ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी इत्तला मिलते ही वसंत शदीद खौफ और ज़हनी तनाव का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक वसंत ने पहले अपने गिले पर जख्म लगाए और फिर हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस ने जाए वकुआ से वसंत का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है और उसकी आखिरी फ़ोन कॉल की तफसीलात की बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है। इस लर्जा खेज वाक़ये ने कॉलेज कैंपस में गम, गुस्से और खौफ की लहर दौड़ा दी है, जबकि वालिदैन अपनी बेटी की अचानक मौत पर सदमे में है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि आया इस मामले में किसी और किस्म का दबाव भी शामिल था या नहीं। इंतज़ामिया ने फ़िलहाल तालिबा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल रियासत ओडिशा के जिला कोरापुट में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 200 करोड़ रुपए मालियत का माए गांजा बरामद कर लिया है।
पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई नंदपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में 2 मुख्तलिफ मकामात पर की गई, जहां खुफिया इत्तला की बुनियाद पर छापे मारे गए। इस बड़ी मिकदार में मुनशियात की मौजूदगी ने सिक्योरिटी एजेंसियों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये बैन अल-अक़वामी मार्केट में इंतहाई महंगी फरोख्त होती है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 4 स्मगलरों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे मुनशियात की सप्लाई के नेटवर्क के बारे में पूछगुछ की जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि ये गांजा सरहद पार रियासतों में मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी की जा रही थी। हुक्काम का कहना है कि मुनशियात के खिलाफ ये हालिया बरसों की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है, जिससे स्मगलरों के गिरोह को बड़ा माली नुकसान पहुंचा है। इलाके में मुनशियात की रोकथाम के लिए मजीद नाकाबंदी कर दी गई है और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। पुलिस ने वाज़े किया है कि इस गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जाएंगे। इस वाक़ये ने एक बार फिर बैन रियासती सरहदों पर मुनशियात की स्मगलिंग के बढ़ते हुए खतरात को नुमायां कर दिया है। जिला निजामाबाद के रूरल मंडल गांधीनगर में खाद की शदीद किल्लत के खिलाफ किसानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों का इल्जाम है कि मकामी सोसाइटियों की जानिब से उन्हें ज़रूरत के मुताबिक यूरिया फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनकी फसलें खराब होने का खदशा है। अपनी मांगों की हिमायत में किसानों ने बांसवाड़ा से निजामाबाद जाने वाली अहम शाहराह पर धरना दिया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी घंटों मुतासिर रही और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और ख़ास तौर पर यूरिया की बुकिंग के लिए लाजमी करार दिए गए मोबाइल ऐप सिस्टम की मुखालफत की। किसानों का कहना है कि देही इलाकों में इंटरनेट के मसाइल और टेक्नोलॉजी से नावाकिफियत की वजह से ऐप के जरिए यूरिया हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है, लिहाजा हुकूमत इस निज़ाम को फौरी तौर पर मनसूख करे। उन्होंने मुतालबा किया कि साबिका रवायत के मुताबिक मैनुअल तरीके से यूरिया की तकसीम अमल में लाई जाए, ताकि हर किसान को आसानी से खाद मिल सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आला हुक्काम की यकीन दहानी तक सड़क खाली करने को तैयार नहीं थे। किसानों ने इंतबा दिया है कि अगर यूरिया की फराहमी में मजीद ताख़ीर हुई तो वो रियासत गिर एहतजाज शुरू करेंगे। इस एहतजाज ने ज़राअत के शोबे में इंतज़ामी बदनज़मी को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। मुकद्दस मकाम तरुआमला की घाट रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक तरुआमला से नीचे उतरते वक्त घाट रोड के 30वें खतरनाक मोड़ पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अचानक बेकाबू होकर सड़क पर उलट गई। इस हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि इसके साथी को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरी चोटें आईं। मोहलिक हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मंदिर की इंतजामिया फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने मोहलिक हादसे में हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त तमिलनाडु के रहने वाले नटराजन के तौर पर की है। दूसरे जख्मी शख्स, जिसका नाम मणिरत्नम बताया गया है, इसे फौरी तौर पर बेहतर इलाज के लिए तिरुपति के सोमज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की असल वजूहात जैसे कि तेज रफ्तारी या ब्रेक फेल होना का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। तरुआमला घाट रोड पर मोड़ काटते वक्त एहतियात न बरतने की वजह से अक्सर इस तरह के हादसात पेश आते रहते हैं। हुक्काम ने ज़ायरीन से अपील की है कि वो घाट रोड पर सफ़र के दौरान मुकर्ररा रफ्तार की पाबंदी करें, ताकि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। रियासत तेलंगाना में IAS अफसरान के हालिया तबादलों के दौरान महबूबाबाद के ज़िला कलेक्टर अद्वैत कुमार सिंह का तबादला होने पर मकामी कबायली और पसमानदा तबकात की तंजीमों ने गैर मामूली खुशी का इजहार किया है। इस फैसले की खबर मिलते ही मकामी लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। कबायली और BC तंजीमों के रहनुमाओं ने कलेक्टर के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और उन पर संगीन इल्जामात आयद किए।
उन तंजीमों का दावा है कि अद्वैत कुमार सिंह ने अपने दूर इक़्तिदार में ज़िला की तरक्की में रुकावटें खड़ी की और अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को नज़रअंदाज करके ज़िला को नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन का कहना है कि कलेक्टर के मुआनिदाना रवैये की वजह से पसमानदा तबकात के मसाइल हल नहीं हो सके, जिसके बाइस अवाम में तवील अरसे से शदीद बेचैनी पाई जा रही थी। इस जश्न के जरिए अवाम ने हुकूमत के तबादले के फैसले का खैर मुकद्दम किया और उम्मीद जाहिर की कि नया कलेक्टर ज़िला की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेगा। पुलिस ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जश्न के मकामात पर हिफाजती इंतजामात किए, ताहम अवाम का जोश व खुरूश दीदनी था। ये वाकया इस बात का सबूत है कि ब्यूरोक्रेसी और अवाम के दरमियान ताल्लुकात में कितनी बड़ी खलीज पैदा हो चुकी थी। సాయం చేయకుండా ఎలకకు పంపించిన ఘనత ఓన్లీ కేవలం కలెక్టర్ అద్వైత్ కుమార్ గారికి దక్కింది। అందువల్ల ఇటువంటి కలెక్టర్ను గుర్తించి 2 సంవత్సరాలు మహబూబాను అభివృద్ధిలో వెనుకకు నెట్టిన 10 సంవత్సరాలు వెనుకకు నెట్టిన కలెక్టర్ గారిని ఇవాళ మహబూబాన్ నుండి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం పట్ల మహబూబాన్లో ఉన్నటువంటి గిరిజన ప్రజలు కానీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ ప్రజలు గారు అందరూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు। దానికోసం గాను ఈ రోజు అంబేద్కర్ సెంటర్ ముందు బాణసంచాలతోనూ బాంబులతోనూ కాల్చుకుంటూ స్వీట్లు हैदराबाद के पोश इलाके जुबली हिल्स में एक हौलनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है, जिसने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़े मंगला गोरी नामी मशहूर कपड़ों की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग के शोलों ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया और आसमान में धुएं के बादल छा गए। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त दुकान में मौजूद मुलाजमीन और गाहकों को फौरी तौर पर महफूज निकाल लिया गया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जाए वो कुआं पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। कपड़े और दीगर आतिशगीर मादा मौजूद होने की वजह से आग बुझाने में अमले को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर रोड नंबर 36 पर ट्रैफिक रोक दी है ताकि इमदादी कार्रवाइयों में कोई रुकावट न आए। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, ताहम असल वजूहात का पता मुकम्मल तहकीकात के बाद ही चलेगा। दुकान के मालिकान का कहना है कि इस आतिशज़दगी में लाखों रुपए मालियत का कीमती कपड़ा जलकर खाक हो गया है। मकामी इंतजामिया और फायर डिपार्टमेंट के आला हुक्काम सूरत-ए-हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला मशरकी गोदावरी से एक इंतहाई शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक 45 साला शख्स ने 7वीं जमात की तालिबा के साथ ज्यादती की कोशिश की। ये अफसोसनाक वाकया कलवा चरला के इलाके में पेश आया, जब मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। मुलजिम की शनाख्त कोलू विष्णु के नाम से हुई है, जिसने बच्ची की कम उम्री और तन्हाई का फायदा उठाते हुए इस पर हमला किया। बच्ची की चीख और पुकार सुनकर जब अहल खाना और मकामी लोग जमा हुए तो मुलजिम वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसे पकड़ लिया गया। वाकये की इत्तला मिलते ही राजानगरम पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर मुतासिरा खानदान से तफसीलात हासिल की और मुलजिम के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और मामले की मजीद गहराई से तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाकये के बाद इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और मकामी मकीनों ने मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। पुलिस हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि वो इस केस की पैरवी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करेंगे ताकि मुतासिरा बच्ची को इंसाफ मिल सके। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने भी इस वहशियाना फेल की मजम्मत करते हुए वालिदैन से बच्चों की हिफाजत के हवाले से चूक न रहने की अपील की है।
रियासत आंध्र प्रदेश के जिला मुनीम के कोमरड्डा मंडल में वाक़ पैदा खिरजेला बुआइज हॉस्टल की इंतहाई अबतर सूरत-ए-हाल मंजर आम पर आई है। इस तालीमी इदारे में मासूम बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, जो कि कानूनन एक संगीन जुर्म है। अफसोसनाक बात यह है कि हॉस्टल में मुकीम कई तलबा शदीद बुखार और बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन इंतज़ामिया उनकी सेहत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जब एक मकामी रिपोर्टर ने उन मसाइल पर इंतज़ामिया से सवालात किए तो हॉस्टल वार्डन ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया और कोई तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय बदतमीजी से बात की। हॉस्टल के अंदर सफाई सुथराई और खाने पीने के इंतजामात भी इंतहाई नाक़िस पाए गए हैं, जिसकी वजह से तलबा की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मकामी लोगों और समाजी कारकुनों ने इस मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आला हुक्काम से वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऐसा लगता है कि हॉस्टल के निगरान अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर गाफिल हो चुके हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खलवाड़ कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस वाक़ये की मजम्मत करते हुए बीमार बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की अपील की है। अब देखना यह है कि महकमा तालीम और ज़िलाई कलेक्टर इस संगीन लापरवाही पर क्या एक्शन लेते हैं। सोशल मीडिया की ताकत ने एक बार फिर बदउनवानी को बेनकाब करते हुए एक रेलवे मुलाजिम को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। यह वाक़या आनंद बिहार रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां एक टिकट क्लर्क ने मामूली रकम की खातिर अपनी मुलाजमत खतरे में डाल दी। बताया गया है कि जब बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की टिकट खरीदने पहुंची तो क्लर्क ने इससे पूरे पैसे ले लिए, लेकिन टिकट जारी नहीं किया और सिर्फ कुछ बची हुई रकम वापस लुटा दी। शायद इस मुलाजिम का ख्याल था कि वो लड़की अनपढ़ है या किसी से शिकायत नहीं करेगी, लेकिन इस बेदार मगज लड़की ने फौरन मौके पर वीडियो बना ली। इसने टिकट काउंटर के सामने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी को रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही रेलवे हुक्काम हरकत में आ गए और फौरी तौर पर इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इब्तिदाई तफ्तीश में क्लर्क को कसूरवार पाया गया, जिसके बाद आला हुक्काम ने इसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। यह वाक़या इस बात की अलामत है कि डिजिटल दौर में आम शहरी अब खामोश रहने के बजाय अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। रेलवे इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि मुसाफिरों के साथ किसी भी किस्म की बदतमीज़ी या माली हीरा फेरी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लड़की की हिम्मत को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है, जिसने एक करप्ट मुलाजिम को बेनकाब किया। यही है रेलवे स्टेशन है आनंद विहार। ये लोग जो टिकट काटने को काम करते हैं ना, ये पैसा हेरी फेरी करते हैं। पैसे हम कुछ और दिए हैं और पैसे हमको चेंज करके दे दिए हैं। हम दिए हैं 200 का नोट, वो 100 रुपये धरा दिए हैं। फिर आपस करके हमको ये पैसे आपस करके वो कर रहे हैं। हम 112 पे फोन किए हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं। हम कंप्लेन लिखवाना है। पता चलता है जो जनता चोरी करते हैं यहाँ, तो ये यहाँ के लोगों बैठ के चोरी करते हैं। देखो तो इसको पास तो ये भी सरकारी नौकरी है, गरीब मजदूरी करते हैं, यहाँ आते हैं कमाने 2 रुपये आए। हम लोग के पास जेंस नहीं है, ये पैसे ने पैसे बदल दिया। हाँ बुला रहे, वो दिए हैं नहीं ना, टिकट भी नहीं दिए हैं, हमको पैसे वापस कर दिए हैं। और ये क्या किए है जो 200 रुपये लेके, हमारे पास 1000 रुपये था, ये देखो 800 रुपये धरा दिए हैं। 800 रुपये धरा दिए हैं, हम फोन किए हैं। मशहूर फिल्मी सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आखिरकार रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए हैं, जिससे उनके मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक उनकी शादी की तकरीब आज सुबह 10:10 पर इंतहाई सादगी और वक़ार के साथ अंजाम पाई। ये शादी 2 मुख्तलिफ तहजीबों और रवायात का एक खूबसूरत संगम साबित हुई है, जिसमें दोनों खानदानों की सकाफत को अहमियत दी गई। शादी की रसूमात का आगाज़ हिंदू रिवायती तरीक़ाकार से हुआ, जहां जोड़े ने खानदान के करीबी अफराद की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। बताया जा रहा है कि इसी दिन शाम 4:30 बजे रश्मिका की आबाई रवायत यानी कोडवा रस्म व रिवाज के मुताबिक भी शादी की एक और खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस तरह ये शादी तेलुगु और कोडवा सकाफतों के इम्तिजाज के तौर पर यादगार बन गई है। सोशल मीडिया पर इस जोड़ी की शादी की खबरें जंगल की आग की तरह फैल रही है और फिल्मी सनत की तमाम बड़ी शख्सियात उन्हें मुबारकबाद दे रही है। मद्दाहों को तवील अरसे से उनकी शादी का इंतजार था और अब ये खूबसूरत जोड़ा हमेशा के लिए एक दूसरे का हो गया है।
इस पुरवकार तकरीब में सिर्फ करीबी रिश्तेदारों और ख़ास दोस्तों को ही मदऊ किया गया था ताकि राजदारी को बरकरार रखा जा सके।